پروگرام اکرم خان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد اکرم خان حاضر ہے۔ ساتھیوں، آئیے آج آپ کو میں خواجہ سرین رضا آصف صاحب کے گھر لے چلتا ہوں، جہاں ناشتے پر ادبی محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پہلے اس تقریب میں شریک تمام دوستوں کا آپ سے تعارف کراتا ہوں اور بعد میں آپ ان دوستوں کی زبانی دلچسپ واقعات سنیں گے۔ تو آئیے پروگرام کے آغاز کی طرف۔ سپرنٹینڈنٹ انجینئر پبلک ہیلتھ ملتان سے میں ابھی ریٹائر ہوں۔ ماشاء اللہ۔ تو ملتان میں رہائش ہے، ویسے بیسیکلی میں خرمال کا ہوں، ڈسٹرکٹ خرمال کا، بس یہ ہے۔ خواجہ صاحب یہاں کے بڑے اچھے اسٹوڈنٹ ہمارے میرے دیبار کے عزیز خان کلاس فیلوز رہے ہیں جی۔ یہ چیف کمشنر انکم ٹیکس واٹ یو ملتان گریڈ 21 میں ریٹائر ہوئے تھے، اور اس دن کے بعد ویری نیکسٹ ڈے یہ ایڈوائزر ٹو ایف ٹی او بھی لگ رہے، پھر آج کل یہ ایڈوائزر ٹو فیڈرل انشورنس ہیں، اور ان کی بیگم صاحب بڑے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، وہ بھی وی سی ہیں، اور یہ ماشاءاللہ گھرانہ پورا بڑا پڑھا لکھا ہے۔ ہمارا تو جی ان کے ساتھ کچھ 40 سال پرانا تعلق ہے، تو ہم اکٹھے ہوتے رہتے ہیں، تو باقی باتیں تو آپ سب جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ عزیز احمد خان یہ جی ہمارا کلاس فیلو ہے جی، یہ بیسیکلی یہ بینکر ہے، بڑا خوبصورت یہ، اور میں اپنا وہ جو لا کالج لا کالج ہم ایڈیٹر تھے جی اس کے میگزین کے، تو یہ آج کل بڑا ریسرچ آدمی ہے، ویسے آج کل ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے، لیکن انہوں نے عزیز نگر کے نام سے ایک یوٹیوب چینل بھی چلایا ہوا ہے، اس پہ بڑے بڑے لوگوں کے انٹرویوز بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ریڈیو ایف ایم پہ ان کا پروگرام باقاعدگی سے چلتا ہے جی، اور بڑی ریسرچ لکھتے ہیں۔ دیکھیے عزیز احمد خان صاحب نے اس وقت بینک کو چھوڑا تھا جب یہ اپنی سروس کے پیک پر تھے، یہ ان کی امپلائیز یونین کے پریزیڈنٹ تھے، اور اس یونین کا پریزیڈنٹ ہونا مینز ا بگ تھنگ۔ تو اس وقت وہ جو سماج کی ظالم دیواریں تھیں، وہ افسران کے جو رویے تھے ظالمانہ، اس کے خلاف انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا، اور اس میں بڑی خوش دلی کے ساتھ، لوگ تو بعد میں کہتے ہیں نا مطلب ہے کہ کریڈٹ لیتے ہیں، وہ کریڈٹ بھی نہیں لیا انہوں نے۔ جس وقت یہاں سے گئے ہیں یہ اس وقت بہت ہی ذمہ دار عہدے پہ، بڑے عہدے پر تھے، اور انہوں نے کوئی محسوس ہی نہیں کیا اس کو۔ اور یہ صرف اس وقت سے لے کر اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے اب تک، جب کالج میں پڑھتے تھے وہاں بھی مطلب ہے جن کا کالج تھا، انہوں نے جب اپنی مناپلی یا سپریمیسی قائم کرنے کو، وہاں بھی انہوں نے ریزسٹ کیا۔ انہیں کے خلاف ہی گیلانیوں کے کالج میں پڑھتا تھا، میری فیسیں معاف کر دی کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں تھے، ایف ایم خان نے بلا کے کر دی، اور میں نے گیلانیوں کا پہلا پینل تنویر گیلانی کا میں نے ہرایا تھا، سالے کا سال کیا، لیکن یہ کوئی، اب میں کہتا ہوں کہ میں نے غلط کیا تھا۔ انوار الحق جی، خانوار سے تعلق ہے، تو انکل کے ساتھ آیا ہوں، بس بیٹھ گیا ہوں، اچھا لگا کہ میں نے کہا 4 لفظ ہم سنیں گے تو ہماری کچھ بہتری تو آئے گی، نالج تو آئے گا، اس لیے بیٹھ گیا ہوں۔ مجھے جانا بھی تھا کھانے والا، میں کرنٹلی جو ہے دبئی میں ہوتا ہوں، میرا اپنا چھوٹا سا بزنس ہے، اس سے پہلے پاکستان میں بینکر تھا، بس پھر یہاں سے 2014 میں میں دبئی شفٹ ہو گیا تھا، کچھ عرصہ ایک کمپنی میں جنرل مینیجر رہا ہوں، اور ابھی ریسنٹلی 2023 میں میں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا۔ کس چیز کا بزنس ہے؟ میرا کنسٹرکشن کا ہے۔ ممتاز احمد خان میرا نام ہے، میں پروفیشنل انجینئر ہوں، 1971 میں گریجویشن کی تھی یو اے ٹی سے، پھر اس کے بعد اریگیشن ڈپارٹمنٹ جوائن کیا ہے اسسٹنٹ انجینئر۔ 1990 میں ایم ایس سی انجینئرنگ کی یو کے سے، اور الحمدللہ میں ریسرچ میں اس وقت فرسٹ یونیورسٹی، پھر واپس آ کر آئی واز پروموٹڈ ایز ڈائریکٹر کالا باغ ڈائریکٹوریٹ، تو اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں 36 سال سروس کی ہے، وہاں سے 2010 میں ریٹائرمنٹ ہوئی۔ یہ ہے کہ اقبالیات میرا ہوا، اقبالیات کا حوالہ ہو اور انجینئر ممتاز خان صاحب کا ذکر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ آج کل کے زمانے میں جبکہ بچوں کو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری کے علاوہ کچھ نہیں آتا، اقبال کی طویل نظمیں، مسجد کرتبہ ہو، شکوہ ہو، جواب شکوہ ہو، ابلیس کی مجلس شورا ہو، اور مطلب اتنی ڈیکسٹیریٹی کے ساتھ مطلب ہے کہ الفاظ کا زیرو بم اور وہ سارا کچھ مطلب ان کی زبان سے مزہ آتا ہے۔ یہی طویل نظمیں، یہ شکوہ جواب شکوہ آپ کو ایک لہر میں سنا جائے گی بغیر کسی جگہ پہ کوئی اٹکے کو، اور سمجھانے کے انداز میں
बताते भी हैं कि इसका ये मतलब है। तो हमारे लिए तो सच्ची बात है कि मतलब अचंभे की बात है कि इनकी याददाश्त का होना। और एक बात इन्होंने बड़ी खूबसूरत की, मतलब जो मुझे बड़ी हांट करती हैं, ये कहते हैं कि काश अगर इकबाल आज हयात होते तो मेरी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश जिंदगी की है कि मैं उनके दरे दौलत पे हाजिर होता और मैं उनके कमरे को अपने हाथों से झाड़ू देता। क्या बात है, ये अकीदा है जिनका, ये तो कहते हैं ये मेरी बड़ी आरज़ू है कि काश अगर ऐसे होता। तो मतलब इस हद तक ये इकबाल के परवाने या न्याज़मंद या अकीदतमंद इनकी वो मौजूद है। और अब मुल्तान में तो जब भी हमारी मजलिस होती है, ये हमारे लिए माहिर इकबालियात है। मैं ये कहता हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश है कि काश के मैं इस मुल्क का सदर या वज़ीर आज़म होता, इस मुल्क का सदर या वज़ीर आज़म होता और अल्लामा इकबाल अगर हयात होते तो मैं इस्लामाबाद से जब भी लाहौर जाता तो सबसे पहले उनके घर हाजिरी देता और उनके घर में झाड़ू देता, उनके घर की सफाई करता, उनका मुठ मरोड़ा करता, 1 घंटा वहाँ गुजारता, फिर मैं जाकर बाकी सारे काम वगैरह करता। ये मेरी अकीदत है। अच्छा जी, ये इंजीनियर साहब ने कंजूसी से काम लिया है। असल बात अभी तक नहीं बताई इन्होंने। ये सतार, हाँ मैन ऑफ क्वालिटी, ये सर सतार बजाते हैं। सतार बजाना किसी किसी का काम है जी। फिर फ्लूट जो बांसुरी बजाते हैं कमाल की बजाते हैं। क्या बात है, सुनी हुई है। अच्छा तो स्टेज पे देखते हैं ना तकरीर। जी सुनी है स्टेज। फिर इसके बाद सर इनका फ्लूट और गाना बड़ा अच्छा गाते हैं इस उम्र में भी। नाउ ही 75। और अगली बात जो सर ये है कि इनको पाकिस्तान की हिस्ट्री पर इतना अबूर हासिल है कि मैं शायद प्रोफेसर फारूक साहब से बेट लगा लूं, इनको दिन दिन याद नहीं होगा पाकिस्तान के हर वाक़े का। इनको टाइम भी याद है कि किस वक्त भुट्टो ने क्या कहा, किस वक्त यागी ने क्या कहा, मोहम्मद अली बोगरा ने क्या किया। इनको एक एक बात ज़बानी याद है। मैंने सर इनका सुकूत ढाका पे मैंने 3 घंटे का इंटरव्यू किया जी, 3 किस्तों में। अगर आप मेरे YouTube पर जाएं तो आपको वहाँ सुकूत ढाका के बारे इनका पिछले साल मैंने किया था। ये इनकी बात, अच्छा मैं मबहूत होके बैठा रहा जी 3 घंटे, मतलब मुझसे बोला नहीं गया कि मैं इनको इंटरप्ट करूं। इन्होंने दिन, वाक़या, नाम, जगह, एक एक बात बताई और मैंने बगैर किसी कटिंग के उसको ऑन एयर कर दिया, बावजूद कि मुझे खतरा था कि कोई भाईजान मुझे ना ले दे। सही बात। और एक और बात का हवाला हम भूल गए, वो है काला बाग डैम। इस पाकिस्तान में अगर कोई शख्स काला बाग डैम के बारे में अथेंटिसिटी से कोई बात कर सकता है तो बिल्कुल। अब्दुल कुद्दूस सुहैब नाम है जी। मैंने 1993 में बाउज़ यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया एज ए लेक्चरर, अभी वहाँ पढ़ा रहा हूँ। इस दौरान मैंने PhD भी किया उलूम इस्लाम इस्लामी मुआशियात के अंदर, पोस्ट डॉक भी किया जो ग्लासगो यूनिवर्सिटी से, बरतानिया से। और बस ये लिखने पढ़ने का काम है, पढ़ाने का काम है। और जो दोस्त अहबाब हैं इनके साथ मिलना जुलना। हाँ, मैं डायरेक्टर भी रहा हूँ इंस्टीट्यूट का, चेयरमैन भी रहा हूँ। तो आजकल भी एक इंस्टीट्यूट ऑफ जसूफिज़म एंड वहाँ बना नया, उसकी डायरेक्टरशिप मेरे पास है। तो कोशिश कर रहे हैं इस इलाके में जो रूहानियत की बातें करें, ख़ास तौर पे इस्लामिक फेथ के हवाले से और अपना इस तरह के मामलात में आजकल बहुत सारी जगहों पे लेक्चर आप दे रहे हैं। जी बस ये। और हाँ, ये शहीद बता रहा है कि अंकल जो है ना, वो जो रमज़ान ट्रांसमिशन होती है रूही की जी, वो 2016 से जब ये मुल्तान में रूही आया ना जी, तो मुझे जमशेद ने फ़ोन किया कि आपने पुआम करना है। मैंने कहा आ जाता हूँ। एक पुआम मैंने कहा एक आधा पुआम, उसने कहा नहीं पूरा महीना करना है और फिर हर साल करना है। तो अभी तक ये चल रहा है। वो ये 2016 से चल रहा है यहाँ पे जो। और फिर ये कि हर महीने एक जुमे को मॉर्निंग शो होता है, जो कल था जुमा वो था। तो बस ये कोशिश होती है कि इस्लाम की जो ना सही तस्वीर पेश की, जो अभी खान साहब बात कर रहे थे ना कि पाकिस्तान में ना इस्लाम जो मजहबियत है ना उसको रास्ते में जो खड़ा कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। और पाकिस्तान का मैं समझता हूँ, मेरी राय है, ऑन एयर भी चली जाए तो कोई आज नहीं, कि इस तरक्की में जो रुकावट डाली है ना हमारे मजहबी तबके ने डाली। बिल्कुल वो मुआशी तरक्की हो, सियासी तरक्की हो, वो जो भी तरक्की हो, यानी उन्होंने इस्लाम को समझा ही नहीं है। तो यही वजह है कि आज हम बहुत पीछे रह गए। तो डॉक्टर साहब वो जरा हवाला बताएं ना कि वो अपना डॉक्टर ज़ियाद हैं आपके इस्लामाबाद के साथ मिलके आप जी पैगाम पाकिस्तान में उन्होंने काम शुरू किया। ये जो APS का वाक़या हुआ था ना जी, उसके बाद फिर उन्होंने उस पर बैठे मिलकर, तो पैगाम पाकिस्तान एक
ڈاکومنٹ تیار کیا ہے اس میں مجھے زیادہ اندازہ ہوا, مجھے اس سے پہلے اندازہ نہیں تھا. جب ہمارے لوگ بیٹھتے ہیں نا جی تو اس پہ تو سب نے دستخط کر دیے. جب انہیں کہا عمل کے لیے آئے پھر پیچھے ہٹ گئے. تو انہوں نے کہا جی پھر آپ 4 لوگ 5 لوگ جو ہیں آپ تو چلیں نا اس کام کے لیے. تو وہ یہ تھا کہ سب کے اندر جو اتفاق و اتحاد, بلکہ آپ بھی اسی پروگرام میں یہاں پہ تشریف لائے تھے, اپنا شام اکبر صاحب نے بلایا تھا. ڈاکٹر صاحب آئے تھے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب وہ آج بھی ویسے بائی چانس آئے ہوں, مجھے پتا ہوتا ہے میں نے بلا یہاں لے آتا, وہ ملتان تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ پیغام پاکستان جو ہے نا اس کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کے اندر جو انتہا پسندی ایکسٹریمزم ہے, جو فرقہ واریت ہے, اس کو کم کیا جائے اور ان سب لوگوں کو ایک ٹیبل پہ لایا جائے کہ جی مل بیٹھ کے نا آپس میں جیو اور جو جینو دو کے اوپر عمل کریں. میرا استاد اکرم خان فوٹو کاٹ رکھے میں پرانے جب تسا گیا سے ریڈیو پاکستان کا سن 80 دے وچ پروڈیوسر فوت تھی گیا کہ اسا میں گیا وہ ایک بلیک اینڈ وائٹ میں فوٹو پھر آپ سے شیئر کروں ریڈیو پاکستان 1980 کے. بلکہ ایک چھوٹی سی بات اس میں اضافہ کرتا ہوں. ایک دفعہ اکرم خان صاحب اور میں ایک پروگرام میں گئے جی, پروگرام کی ڈیوریشن ہوتی تھی 30 منٹس. اچھا اس دن وہ پروگرام جو تھا وہ 20 منٹس کا بن رہا تھا. اچھا پروڈیوسر تھا باسط خان مرحوم اللہ اسے غریق رحمت کرے, وہ کئی دفعہ آیا مطلب اس سے نکل کے آپ کا جو شیشے کا وہ ہوتا ہے نکل کے باہر آیا کہ یار یہ پروگرام جو ہے نا 30 منٹ کا تھا تو 20 منٹ ہوئے, اس کو طویل کریں. ریہرسل بار بار ہو رہی ہے, پروگرام پھر بھی 30 منٹ کا نہیں ہو رہا. اچھا اب جس شام کو وہ پروگرام نشر ہوا ہے اس میں 10 منٹ کا اس کا تعزیتی پروگرام وہ لاسٹ پروگرام تھا جو اس بندے نے ریکارڈ کیا تھا, اور وہ 10 منٹ اس کے لیے مختص تھے جو جس میں تعزیت ہوا. ریڈیو والوں نے پھر وہ سر صاحب وہ پروگرام میرا پروگرام تھا, میں اس کا کمپیئر تھا, اور وہ پروگرام ریکارڈ ہوا سر. تو اس میں آخر میں آپ کے کمپیئر نے کہا کہ آج یہ پروگرام کے جو 10 منٹ ہیں ہم اس ہستی کے نام کر رہے ہیں جو آج وفات پا گئے ہیں, جس نے یہ پروگرام آخری ریکارڈ کیا تھا. تو یہ سر کتنا بڑا اتفاق ہے. اتفاق بڑی دلچسپ بات ہے کہ مطلب بندہ اپنے لیے ٹائم چھوڑ جاتا ہے. بہت شکریہ جی. پہلی بات تو میں خواجہ سلیم آصف صاحب کا مشکور ہوں کہ آج انہوں نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو یہاں اپنے گھر اکٹھا کیا ناشتے کی ٹیبل پر, اور ملتان میں شاید یہ پہلا ایک اکٹھ ہے جو ناشتے کی ٹیبل پہ ہو رہا ہے. اور یہ آئیڈیا تو جو کہ میرا تھا کہ جی یہ ہونا چاہیے ہر یہ سردیوں کے موسم میں کم از کم ہم ہر سنڈے کسی دوست کے گھر ناشتہ کریں. تو پہلا تو خواجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. وہ جو نغمہ آپ سنتے ہیں نا جی, اپنا دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا بیک گراؤنڈ میوزک میں کون تھا, اس کی ڈائریکشن کس نے دی تھی, پروڈکشن کس کی تھی, تو وہ اکرم خان صاحب, اس کے روح رحمان خود ہے. چلیں بڑی مہربانی. اچھا سر میرا تعارف جو باری میری آ گئی ہے, میں جواد مفتی کا خواجہ سلیم آصف صاحب کا عزیز خان کا کلاس فیلو ہوں جی. ہم نے اکٹھے MA اور LLB وغیرہ کیا ارلی 80s میں, اور انہی کی صحبت کی وجہ سے مجھے ریڈیو پاکستان پہ جانے کا اتفاق 78 سے ہوا. میں کمپیئرنگ کرتا تھا اور کرتے کرتے میں انکم ٹیکس میں آ گیا, انکم ٹیکس آفیسر رہا, AC رہا, DC رہا. میں پھر ایڈیشنل ڈائریکٹر انٹیلیجنس 2016 میں یہاں ملتان سے ریٹائر ہوا ہوں. 4 سال پھر میں یہاں بختیار امین میڈیکل کالج کا جنرل مینیجر رہا. تو آج کل میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں جی 7-8 سال سے. اور 2 میرے YouTube چینل ہیں, AK92 چینل, جس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے دوستوں کو اکٹھا کروں, بیٹھوں, گپ شپ کروں اور اپنی پرانی یادیں. ٹیکسٹ کو ہم نے بڑا کام کیا جی, 38 سال ہم نے بڑا کام کیا. تو ٹیکسٹ کی بات ہم کبھی نہیں کرتے. ہم جب بھی ملتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ کسی موضوع پہ کسی گپ شپ پہ ہم اکٹھے ہوں اور اپنے دل پشوری کریں, گپ شپ کریں. تو آج بڑا مزہ آیا. بلکہ مجھے ابھی 3-4 دن پہلے اتفاق ہوا کہ جب خالد اقبال صاحب کی باری آئے گی تو بتائیں گے اسٹیشن ڈائریکٹر ریٹائر ہوئے ہیں جی ریڈیو پاکستان ملتان سے. تو جس دن ریٹائر ہوئے ہیں تو میں نے ان کا 40 منٹ کا ایک انٹرویو کیا جی, اور وہ اگر آپ YouTube پہ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا آپ کو لطف آئے گا. ہم نے پرانی یادیں, کیونکہ اس کو بھی انٹروڈیوس میں نے کروایا تھا. اور یہ انٹروڈکشن کی جب بات ہوتی ہے تو میں بتا دوں کہ خواجہ صاحب نے جب CSS کیا تو میں ہی پہلا آدمی تھا جس نے ریڈیو پاکستان ملتان میں ان کا انٹرویو کیا. نوجوان نے تقریباً 25-30 منٹ کا انٹرویو کیا. وہ آن ایئر گیا. اور اسی زمانے میں میرا خیال 85 میں حامد سعید قادمی صاحب ہمارے محکمے میں انکم ٹیکس میں تھے. تو جی تو پھر وہ انہوں نے اپنے والد صاحب کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا. اور جواد مفتی صاحب بھی میرے پروگرام میں آتے رہے ہیں. یہ اس وقت نوایت اخبار میں ہوتے تھے, اور آپ بھی آتے رہے ہیں. پروفیسر نسیم شاہ صاحب, آپ اکرم خان کا تو بڑا
جی بالکل بڑی مہربانی. تو ہماری کوشش ہماری دوستوں کی کوشش یہی رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اکٹھا کریں اور ان کو خاص طور پر جو بچے یا اس وقت کے جو نوجوان تھے, ایک فاخرہ بدول تھیں, سرفراز خان تھے, تو میں نے کوشش کی کہ وہ ریڈیو پاکستان کے بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پہ ریٹائر ہوئے, بلکہ وائس آف امریکہ میں گئے ہیں. اور جبال مفتی صاحب کی جب باری آئے گی تو یہ اپنا تعارف خود کرائیں گے کہ ماشاءاللہ یہ نویت نے ان کو جوائن کیا. حالانکہ میرا ان سے پورا اسلام آباد سے تعلق تھا, میرے 3-4 جگہ یہ میرے کلاس فیلو بھی رہے ہیں, اور یہ ریزیڈنٹ ایڈیٹر رہے ہیں جی نویت اخبار ملتان کے, خبر اخبار کے, اور ماشاءاللہ بڑے پریزنٹر ہیں جی, پاکستان ٹی وی پہ بھی پروگرام کرتے رہے ہیں, بڑا نام ہے ان کا جی, ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں اور مفتی گھرانے سے تعلق ہے ان کا. تو اوور ٹو خیام صاحب. بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب, سب سے پہلے شکریہ کہ مجھے موقع ملا یہاں پہ آپ لوگوں کے درمیان. میں کوئی تقریباً 4 دہائیاں جو ہے کھانا بدوشی کرتا رہا. یہاں پہ ایف ایس سی کرنے کے بعد یونیورسٹی لاہور چلا گیا تھا, انجینئرنگ کی, انجینئرنگ پروفیشن میں کچھ عرصہ تھا, لیکن میرے والد مرزا تصدق رسول چغتائی لائر تھے نہیں, وہ تصدق وہ اور ہے, ہم لوگ گوڑ گیٹ سے ہیں. تو والد سے میرا وعدہ تھا کہ میں نے سی ایس ایس کرنا ہے, تو وہ پھر میں نے 3-4 سال کے بعد میں وعدہ پورا کیا اور اپنی چوائس کی سروس ملی, فورن سروس میں آیا, اور پھر اگلے 32-33 سال مزید خانہ بدوشیاں. آج کل اب یہ ڈی ایچ اے فیز کیا ہے, سیکٹر AR میں نے گھر ایک چھوٹا بنایا ہے, اس میں رہ رہا ہوں. چھوٹی سی ایک کمپنی بنائی ہے جو بیسیکلی جو نئی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں, کمنگ بیک ٹو انجینئرنگ اگین, نئی لائک روبوٹکس, IoT, کمپیوٹر ویژن, اس کی اسکلز بچوں کو سکھانے کے لیے ادارہ ایک ڈیولپ کر رہا ہوں آہستہ آہستہ. ملتان ایک چیلنجنگ جگہ ہے اس لحاظ سے, لیکن اللہ کا فضل ہے کہ گاڑی چل پڑی ہے. یہ چھوٹا موٹا تعارف ہے, علم کے گھر سے تعلق ہے, لیکن بے علم قسم کا آدمی ہوں. ادب کا ادب ضرور کرتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج کی محفل کے بہت سارے شرکاء کا نیازمند ہوں, اور جبال مفتی میرا نام ہے. پریکٹیکل لائف جو ہے وہ جرنلزم میں گزری ہے. نوائے وقت کے ایک ادنا سے کارکن سے شروع کیا تھا اور ریزیڈنٹ ایڈیٹر کے طور پر ریٹائر ہوا تھا. پھر باقی اکرم خان صاحب بہت سارا بتا ہی چکے ہیں. خبر اخبار سے بھی ریزیڈنٹ ایڈیٹر رہا ہوں, تو آج کل بابا ویلا ہی ہے. فاروق ہے, میں 2017 میں ریٹائر ہوا ہوں بہاؤالدین ذکریا یونیورسٹی سے ایز اے پروفیسر. ایجوکیشن میری ماسٹر ہے, پھر میں نے قائدم یونیورسٹی سے کیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں. یونیورسٹی آف لندن سے میں نے پوسٹ ڈاک کیا. آج کل ریٹائرڈ گزارتے ہیں. خالد صاحب کا شکریہ بلا لیا. میں نے کہا اچھا مجھے اچھا لگا مجھے, لیکن اس سے اچھا یہ ہو کہ ویرائٹی اور مختلف پروفیشن سے یہ مجھے لگا شاید یہیں آپ پوری کالونی کے ہوں گے پروفیسر یا زیادہ تر ہیں, میں تو یہی سمجھا, لیکن یہ اچھا لگا. ویرائٹی آف پروفیشن کے لوگ ہیں, اس طرح بندہ ایک دوسرے سیکھتا ہے, عمر ہے سیکھنے کی, بندہ سیکھتا رہتا ہے. نہیں جی, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی بہت ساری نسبتیں ہیں. ان کی اپنی جو بیگم صاحبہ ہے, مطلب وہ بھی وہاں پہ پرنسپل میرا خیال ہے بلوم فیلڈ میں, وہ بھی. اور پھر یہ کہ AB اشرف صاحب کے یہ سن ان لا بھی ہیں. میرا نام آفتاب حسن ہے جی. تو بیسیکلی میں انجینئر ہوں, سول انجینئر, اور میں یونیورسٹی میں نے جوائن کیا 1984 میں, تو ریٹائر 2017 میں ہوں. جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, ہم ایک ہی سال میں ریٹائر ہوئے جی ایز اے پروجیکٹ ڈائریکٹر. لمبا کام میں نے کیا ہے, 10 سال میں PD رہا ہوں جی وہاں کا پروجیکٹ ڈائریکٹر جی. بیسیکلی ہم لوگ ذمہ دار گھرانے سے تعلق ہے جی, تو بیسیکلی ذمہ دار ہے ہمارا. تو میرے بیٹے نے ذمہ دار سنبھالا ہوا, ایک شہیر کے ساتھ بڑی پرانی, اور ہم سائے رہے جی. یونیورسٹی میں میرا گھر 10 تھا, ان کا 11 نمبر تھا, ہم وال نیبر تھے. تو خواجہ صاحب تو بڑی کوالٹیز کے مالک ہیں جی, اور باقی پڑھے لکھے لوگ سارے. اور اس محفل میں آ کے نا جی پتہ چلا جی کہ کس طرح کے اس گلدستے میں کس طرح کے پھول آپ لوگوں نے پروئے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہیں جی لوگ.
बड़े नॉलेज वाले लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आता है सुन के बातें। जैसे जब्बार मुफ्ती साहब का तो नाम भी है, पहली साफत में इनका बड़ा नाम है जी। बाकी लोग भी सारे अकरम साहब जैसे बाकी लोगों को तारुफ करा रहे थे जी, लंबा चौड़ा तारुफ हुआ जी। तो A.B. अशरफ साहब का जिक्र आया ना जी, मेरी जो बहू है ना जी उनकी नवासी है, मेरी बहू उनकी नवासी है जी। तो मेरे बेटे ने PhD की इकोनॉमिक्स में जी, बट ही हैज़ लेफ्ट हिज जॉब, तो ही इज़ डूइंग हिज ओन जी। मेरे दोस्त ने मुझे आके कहा जी ही विल नॉट डू द जॉब। मेरे दोस्त हैं जी, इन जानते होंगे जी, एम्बेसडर साहब इब्न अब्बास का नाम आपने सुना, वो जी वो मेरा बहुत करीबी दोस्त है। मेरे पास आया और नीलम सीट के मालिक हैं हसन रजा साहब, उन्होंने कहा कहते हम यही काम है जी। मैं बताएं जी इसी घर में 2019 में IR पे इकट्ठे किया है उन्होंने मुझे कहा जी कि नौकरी छुड़वाने आए जी, बिहाड़ी जाता है जी, नई नई गाड़ी ले जाते हैं जी, एक्सीडेंट हो जाए, कार स्नैचिंग हो जाए, हमने क्या लिया जी, छोड़ें जी। अब हालात पाकिस्तान के जैसे आप फरमा रहे जी, पाकिस्तान के हालात तो बहुत ख़राब हुए जी। इसमें दुख किसी चीज़ का हो रहा है ना जी कि ये मुल्क बना कैसे था और इसके साथ बर्बादी कैसे हुई है। वी वर पार्ट ऑफ इंडिया, जस्ट कंपेयर योरसेल्फ विद इंडिया, एंड बांग्लादेश वर पार्ट ऑफ पाकिस्तान जी, जस्ट कंपेयर योरसेल्फ विद बांग्लादेश। उनके तो रिसोर्स भी नहीं उनके पास बांग्लादेश के। आपकी बात को थोड़ा सा बड़ा करूंगा। हाँ जी, मैं 2008 और 2013 में इंडिया गया, जब अटारी स्टेशन इधर इंडिया साइड पे है अटारी और इस साइड पे है बागा। प्रोफेसर वसीम शाह साहब, जब हम अटारी में पहुंचे, जो मैंने खास बात नोट की, लेफ्ट और राइट साइड पे जो देहात थे, कहीं पगडंडी मुझे नजर नहीं आई, कोई जगह खाली नजर नहीं, हर जगह हरियाली थी और फॉग था बड़ा मजेदार, खूबसूरत, ऐसा लगता था जैसे मैं मरी के इलाके में आया हूँ। जैसे ही मैं बागा पहुंचा, 5 मिनट का रास्ता आ गया, तो आप यकीन करें ऐसा लगता रूम बंजर जमीनें पड़ी हैं और कोई खेती बाड़ी नहीं है। सब प्रोफेसर ये कैसर महमूद साहब जो है मरहूम जो SBR में थे, मेरे भतीजे थे। वो अच्छा हमारे कलीग थे जी, वो अच्छा कैसर मेरे भतीजा थे। उसको ये पाकिस्तान यही आपके नैब जो बनी है ना जी, उससे उसकी पोस्टिंग आती की नैब में जी। आप लोग तो जानते हो सलीम रजा साहब तो ज़्यादा जानते। उसको ना जी इन्होंने नवाज शरीफ साहब का केस दे दिया इंक्वायरी के लिए और एक डबल शाह केस दिया, उन बीच में ओरिजिनल कागज बीच में चोरी हो गया। डेड ऑनेस्ट बंदा था जी, डेड ऑनेस्ट बंदा था जी। और ये मेरा तो भतीजा जी, और वो जो है ना मेरे घर जो है ना पीछे हम इकट्ठे ही होते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम था। आप अकमल साहब के मेरे कज़न मैं उनका वो मेरे बहनोई है जी, और मैं उनका मतलब उसकी भांजी मेरे घर है जी, फटा सटा हुआ जी। तो उसको नहीं ये कागज, उसके बाद मेंटली वो इतना डिस्टर्ब हुआ, मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल रहा, अल्टीमेटली डेथ हो गई। बस ये कागजात उसके नैब से वो चोरी उनको कहा, उनके DG से मेरी बात हुई जी, भिंडर साहब थे, खुर्शीद अनवर भिंडर के बेटा था, ही वाज DG ऑफ नैब एट दैट टाइम जी। तो मेरी उनसे बात हुई तो मैंने कहा जी, कहते हैं वी नो यार ही द क्या जेंटलमैन बंदा है और इतना डेड ऑनेस्ट है जी, वी वांट टू कीप हिम इन आवर नैब। और मैं कहा जी उसकी सर्वाइवल का मसला बना हुआ है जी, आप रिपेट्रिएट करवाएं और ये तो मसला उसके जिंदा रहेगा तो काम करेगा जी। नहीं वो बहुत हसास था जी, बहुत हसास। एक मिनट सरकार जी, आपने जिस तरह बात की है ना, जो वाघा बॉर्डर पे आप आए तो आपको महसूस हुआ, अभी तो कुछ महसूस नहीं। मेरे पास ये सारा एरिया रहा है, मैं इसी भावलपुर इधर, ये सारा बॉर्डर आप भावनगर से स्टार्ट करें ना तो आपको इतना दुख होगा जाके देख के कि उस लाइन पे जिस तरह बता रहे पगडंडी भी नहीं, उस तरफ तो कमाल है और इस तरफ वाटर लॉक्ड एरिया है सारे का सारा, यहाँ से लेके पूरा सिंध तक चूँकि एरिया था तो मैं जाता था वहाँ पे, वो सर जी रोना आता था। नसीम शाह साहब, बाकी सबसे तो हमारी शनाशाई क्या बड़ी ताकतें हैं, मतलब 2-4 शख्सियात आज नहीं हैं, तो ये सलीम रज़ा आसिफ साहब की वजह से आज इनसे भी मिलने का हमें मौका मिला है। तो मेरा नाम नसीम शाहिद है और मैं भी इत्तेफाक ये है 1, 2, 3 2017 तो ये 17 का बैच समझ लें आप, ठीक है, जो रिटायरमेंट में गया है। तो मैं साइंस कॉलेज से प्रिंसिपल रिटायर हुआ हूँ और वैसे मेरा हवाला सहाफ़त का भी है, इनके पैरोकार हैं जब्बार मुफ्ती साहब के, मैं कॉलम लिखता हूँ, रोज़ मेरा कॉलम छपता है उनके रोज़ाना पाकिस्तान, और मुल्तान से ही ताल्लुक़ है, मुल्तान की चंपल हैं, शायरी भी की है, 3 शेरी मजमूए भी आए हैं। तो ये सिलसिला है, ये सारे दोस्त अपने, अभी मुझे कह रहे थे आते ही जुमला मारा उन्होंने, आपने सुना होगा,
कि आज तुसी ना आंदे ना तो तुहानू कट कर देना चाहिए। हालांकि ये खान साहब की मोहब्बत है, आप सर इसको ये ऐसा करें। कर नहीं सकता, ऐसा नहीं कर सकता, जो मर्जी कर नहीं बल्कि आप ये कहें कि करके दिखाओ। करके मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये मोहब्बत है, इग्नोर मोहब्बत है। सर ये भी आपके साथ मोहब्बत का एक अंदाज। सर मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये बंदा दिल से। सर ये अभी हम ना इससे नाश्ते के बाद इसकी गजल के और गजलों के कुछ अशार सुनेंगे तो आप सर धुनेंगे कि यार ऐसे बंदे के साथ आज मुलाकात हुई है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गुल। मैं तो बिल्कुल इस ग्रुप में नया हूँ, ख्वाजा मोहम्मद इकबाल मेरा नाम है, और आज पहली दफ़ा इस महफिल में शरीक होने का मौका मिला है। इसमें से कुछ चेहरे शनासान हैं, जैसे अकरम साहब से तो जब हम छोटे होते थे तो ये हमारे साथ ही रहते थे, तो ये मुझे गुल के नाम से जानते हैं, जबकि उस्ताद जी मुझे नहीं जानते गुल के नाम से। अभी बता रहे थे मुझे कि वो ये मुझे देखते कहेंगे वो यानी आ गया गुल, तो गुल ऐसे कहते ही नहीं है। मेरा बचपन का नाम है जी जी जो कि आप रिपीट करते हैं। तो दूसरा जी इनका बहुत बड़ा हवाला जो है हमारे बहुत ही करम फरमा ख्वाजा शफीक साहब। हाँ जी ख्वाजा शफीक साहब के साथ समाज में ख्वाजा अशरफ साहब के, ख्वाजा अशरफ साहब, ख्वाजा अशरफ साहब, ख्वाजा नूर मुस्तफा चाचा। जी बिल्कुल। जी मैं शुक्रगुजार हूँ जी अपने मोहतरम ख़ालिद सलीम आसिफ साहब का, जनाब अकरम खान साहब का, जो मुझे सबसे पहले रेडियो ले गए थे, और इस ताल्लुक़ को मजबूत करने में खान साहब से मेरे मेंटोर जनाब सरफराज खान साहब का मैं शुक्रिया ज़रूर अदा करूँगा कि उन्होंने दरमियान में हमें दोबारा वापस एक दूसरे से मिलाया। मेरा अकरम खान साहब से मुलाकात हुई। अकरम खान साहब ने पहले भी एक तकरीब में याद किया, आज भी याद किया, इंशाअल्लाह आइंदा भी जब याद करेंगे मैं आता रहूँगा। मैंने रेडियो पाकिस्तान तालिब इल्मी में ही जैसे शौक़ होता है, मैंने बताया खान साहब ने ऐसे कैजुअल ज्वाइन किया था, फिर प्रोड्यूसर की हैसियत से मौका मिला 1988 में, फिर मुख्तलिफ़ शहरों में सर्विस का मौका मिला। बलूचिस्तान में तुर्बत में रहा, सरगोदा में 8 साल रहा, डेर इस्माइल खां में जॉब की, इस्लामाबाद मौका मिला, फिर लास्ट टाइम मैं भावलपुर था, अब फिर यहाँ से स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से रिटायर हुआ हूँ। दरमियान में मुझे मौका मिला था क्योंकि मैंने सराइकी में अपनी मादरी ज़बान है तो मुझे इससे एक तरह से बड़ा इश्क और लगाव है, तो मैंने एमफिल किया और पीएचडी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया सराइकी में। तो फिर लकीली मुझे सर की मोहब्बतों से फिर मुझे इधर सराइकी एरिया स्टडी सेंटर में मौका मिला 2.5 साल डेपुटेशन पे। तो मेरी ख्वाहिश थी और मैंने बड़े जज्बे के साथ वहाँ काम भी किया कि भी अपनी तहजीब, अपनी सकाफत, अपना कल्चर, अपने लोगों को करीब आने का मौका मिले, और ये इस तरह से मेरी खुशकिस्मती मैं समझता हूँ। पीएचडी आपने बताया नहीं, चैनल बनाया आपने, पीएचडी भी किया ना? जी सर, पीएचडी किया, फिर चैनल बनाया, चैनल आपने बनाया, चैनल बनाया, कोशिश की कि भाई जो आज का नया ये मीडियम है सोशल मीडिया, इस पे अपनी तहजीब, सकाफत, तारीख जो है इसको नुमाया किया जाए। तो इसमें बड़ी कामयाबी हुई। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया मुझे याद किया। मेरी पोस्टिंग सी अपना उधर अपना एडिशनल कमिश्नर डीजी खान राहत साहब ने फोन किया कि यार वो फराज आ रहे ने ਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਉੱਥੇ ਛੋੜਨਾ ਸਰਕਾਰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ 에어ਪੋਰਟ ਜਾਈ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੈਠ ਤੇ ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਡੱਬਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ। अच्छा वो हम मेनू समझ ही ना आई, मैं समझा कि पता नहीं कुछ शूज उन्होंने इत्थों को मंगवाए, उन्होंने जाहिर है बॉस ने किया है, मतलब उन्होंने खोलने का भी कोई गल नहीं बनती, मतलब मैं क्यों खोल के देखा। हुण मैं वो पिछली सीट उत्ते बैठा, मैं हुण मतलब एवें जिस तरह बंदा एवें हरकत करता है, कदे इधर रखे कदे उधर रखे, वो चलता रहा सिलसिला। फराज साहब आए जनाब, वो बैठे। अच्छा वो डब्बा वो ही रहा, किसी ने कोई नोटिस नहीं किया। सर्किट हाउस पहुंच गए, गड्डी खड़ी है, इन्नी देर आ गए खुद भी गपशप। थोड़ी देर बाद कहते यार वो तेन डब्बा दिता सी किथे सी, मैं किसा बोले चुक के लिया। वो फिर फराज साहब ने पेश किया कि सर ये फलानी है ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। अच्छा दूसरा ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਤਾਉਲ ਕਾਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਤਾਉਲ ਕਾਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਲੋਧਰਨ ਕੋ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਦਾਊਦ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ
ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਉਥੋਂ ਆਪਣਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਖਬਰੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਧਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ASF ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬਦਾਦ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਵੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਚੱਪੇ ਥੱਲੇ ਰੇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਸੋਡੋ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ? अच्छा वो नूरजहां की बातें हैं, वो एक आदि मैं सुना देता हूँ जरूर। वो सर नूरजहां शिलान होटल में मैं चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर था, वो मुझे उन्होंने कहा कि खान साहब तारिक शेख साहब ने कभी आपने इनके साथ रहना है। वो हमने उनके जो टिकट बेचे थे उनके पैसे मेरे पास थे, तो मैंने शेख साहब कहने लगे यार ये भी शाम को दे देना। अब मैं जब शिलान होटल में गया तो मैडम का मेरे से पहले तारुफ था, एक दिन पहले जो फंक्शन किया था उसमें मुलाकात हो चुकी थी खाने पे भी, तो वो वहाँ बैठे थे मसूद राना, मुनीर हुसैन। अच्छा वो जनाब अब वो मुझसे उसका शरबत तहुरा का जिक्र करें मुझे कि भाई हमें तो वो पैदा करके दें। मैंने कहा जी ये तो ना मैंने कभी देखा है ना मैंने इस्तेमाल किया, मैं कैसे आपको ला दूँ। बहरहाल मैडम ये बातें सुनती रही, लेकिन मैडम ने किसी ने ना, उन्होंने कहा जी मुझे हमें तो ये आपने सर, मैंने फिर जाके अपने कमिश्नर साहब कहा, तो मेरे सर ये तो बड़ी शेख साहब को मैंने कहा ये बड़ी आकड़ सी फरमाइश कर दी है, तो ये माशाल्लाह का दौर 88 का बात, 88 की बात है जिन दिनों दिलीप कुमार आया था पाकिस्तान में, उसके बाद क्या इस तरह के वाक़यात की बात है, उन्हीं क्रैश हो गया था, ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है। बहरहाल वो फिर मैंने, लेकिन जो आपको बताने वाली बात है बाकी सारी बातें कट करके हमने उनको इनकार कर दिया, और ये MGM में फंक्शन हुआ था। हुआ ये सर के जब ये टिकटें बिक रही थी ना उसके फंक्शन की, तो एक पता नहीं 100 उसकी 100 टिकटों की ना 100 टिकटों की थी वो काफी, उसमें मेरा 200 रुपए की 400 रुपए की कितनी बनेगी जी? 2000 की बनेगी सर। 100 रुपए की थी टिकट, 200 रुपए की थी, 200 की तो 2000 की बनेगी सर। मैडम ने तो जनाब इतना वो किसी लड़के कलर से इधर उधर हो गई। अच्छा मैडम ने तो जनाब तारिक शेख की पैंट उतार दी। अच्छा वो मेरा जी वो खाना साहब वो बड़ी मुश्किल से जब फंक्शन ये सारे खत्म हो गए, शेख साहब ने कहा कि मैं इतना बड़ा अफसर हूँ और मैं ये काम कर सकता हूँ कि भाई आप इस मजहब से मेरा ताल्लुक है, तो मैं कैसे कर सकता, मैं ही आपका मेजबान हूँ, मुझे आपने जनाब इंतजार दिया, तू इस तरह तू उस तरह। मैडम ने जनाब क्लास ले ली। फिर अल्टीमेटली तीसरे दिन या चौथे दिन जब वो हो गया, जिस तरह साइफर का लिफाफा सारे, इसके बाद अचानक खारजा दफ्तर से वो लिफाफा मिल गया, इसी तरह वो टिकटों की थी वो एक अलमारी के नीचे से मिल गई। लेकिन वो एक हादसा हुआ कि उसके तो सर इस तरह की बातें। फिर मैडम का मुझे सर समझ नहीं आई कि वो इतनी प्रोफेशनल थी, इतने बड़े लोगों का ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये तो एक और बात, मैंने उसको 40,000 दिया जी मैडम को। खालिद साहब अब वो आप 40,000 का आप कहानी सुने, कैसे मैं आपको पूरा प्रोफाइल करके दिखाता हूँ कैसे उसने दिया कि मैंने 40,000 दिया उनको। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये ऐसे ऐसे नोट गिनने के बाद उसने कहा कि दूसरे नोट गिने 10 नहीं 1000 के थे। उसने फिर ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे
अब वो कहती है कि भाई 40 जितने थे उसमें वो ये ऐसे करना तुम सजनों को दे देना, तुम मसूरान को दे देना, ये उसको दे देना, ये उसको दे देना। मुझे सब कुछ ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी का स्टाइल और रखने का स्टाइल अजीब सा लगा। अजीज खान साहब, फिर दूसरी बात मैंने फिर देखा जब मैं उसके बेडरूम में दाखिल हुआ, वो जो बाथरूम था, बाथरूम में एक आदमी खड़ा, वो इधर भी मुशिस और खत्म कर रहा था, ये शेव कर रहा था, दाढ़ी थी सारी बिल्कुल। मैंने उस देखा कि ये बंदा बाथरूम में, हम लोग बैठे बेडरूम में और वो बंदा बाथरूम में। मैंने फिर उनसे पूछा कि ओ खान जी तुहानू पता नहीं है ये मैडम दी मिठी मुट्ठी मरोड़ी करता है। तो वो पता चला जी वो एक खुसरा उन्होंने परमानेंट रखा हुआ था जो मैडम के सारे मुट्ठी मरोड़ी और ये वो काम करता था। मतलब मैंने बड़े लोगों को बड़ी छोटी छोटी हरकतें करते देखा है। सादा सा होना चाहिए और सेहत वाला नाश्ता। एक गज़ल है सर, जिसमें निहा सहर है वो अख्तर तलाश कर, जिसमें निहा सहर है वो अख्तर तलाश कर, तारीकियों में सुबह का मंजर तलाश कर। जिसमें निहा सहर है वो अख्तर तलाश कर, तारीकियों में सुबह का मंजर तलाश कर। इस दिल की बेकली का इलाज और कुछ नहीं, इस दिल की बेकली का इलाज और कुछ नहीं, अब आरज़ू के वास्ते खंजर तलाश कर। इस दिल की बेकली का इलाज और कुछ नहीं, अब आरज़ू के वास्ते खंजर तलाश कर। शोहरत के आसमान पे बेशक तू जगमगा, शोहरत के आसमान पे बेशक तू जगमगा, लेकिन ज़मीन पे पाँव का पत्थर तलाश कर। शोहरत के आसमान पे बेशक तू जगमगा, लेकिन ज़मीन पे पाँव का पत्थर तलाश कर। सूरज की रोशनी हो या चंदा की चांदनी, सूरज की रोशनी हो या चंदा की चांदनी, दोनों में अपने यार का पैकर तलाश कर। कब तक जिएगा झूठे खुदाओं की आस पर, हालात आदरा, कब तक जिएगा झूठे खुदाओं की आस पर, रहजन को छोड़ अब कोई रहबर तलाश कर। कब तक जिएगा झूठे खुदाओं की आस पर, रहजन को छोड़ अब कोई रहबर तलाश कर। मेरी वफा तो तेरे किसी काम की नहीं, मेरी वफा तो तेरे किसी काम की नहीं, अब जा कहीं से कोई पैगंबर तलाश कर। मेरी वफा तो तेरे किसी काम की नहीं, अब जा कहीं से कोई पैगंबर तलाश कर। जिसमें दुआएं माँ की न शामिल हो रात दिन, जिसमें दुआएं माँ की न शामिल हो रात दिन, सारे जहां में ऐसा कोई घर तलाश कर। आजकल मैं एक आदमी से बड़ा मुतासर हूँ ख्वाजा साहब, आपकी इजाजत के साथ। मैं आदमी की चाहतों का क्या खूबसूरत तरीके से अंदाज है उसका। ये बड़ा हाईली एजुकेटेड आदमी है, अकरम आतिफ जो है ना, बहुत बड़ा राइटर है। उसका जो सुनाने का अंदाज है इंडिया पाकिस्तान में बिल्कुल निराला है। जी आपकी इजाजत के साथ कहता है जी, छत्ता पईयां टीन दियां, अच्छा छत्ता पईयां टीन दियां, सदरा वेखो जीण दियां, पैसा धेला बोलण दा, गल्लां बातां दीन दियां। वाह, यानी पैसा धेला बोलण दा ते गल्लां बातां दीन दियां। वन सवन्ने सप्पां नूं
बन सवने सपा नू चस्सा इको बीन दियां जस्सा इको बीन दियां सदरा देखो जीन दियां चोला। ये जरा कमाल का शेर है जी, कहता है चोला हले पाटा नहीं, यानी कमीज अभी पाटा नहीं है, चोला हले पाटा नहीं फिक्रा देखो सीण दियां। वाह, फिक्रा देखो सीण दियां। और इससे भी कमाल का शेर है जी, खद्दर वर्गे लोगां नू आसा मोरा कीन दियां। मोरा कीन एक जी बड़ा नफीस महीन कपड़ा है, उसके बारे में कीमती होता है। खद्दर वर्गे लोगां नू आसा मोरा कीन दियां ठंडे सीत सियाला नू, यानी ये सर्दी का जिक्र हो रहा है, कहता है ठंडे सीत सियाला नू अग्गा लगियां पीण दियां। एक गजल अजीज अहमद खान साहब। उस शहर खामोशा में कोई घर ही नहीं था, उस शहर खामोशा में कोई घर ही नहीं था, आंखों में जो बस जाता वो मंजर ही नहीं था। हर लम्हा मेरे हरफे तलब का रहा महवर, हर लम्हा मेरे हरफे तलब का रहा महवर, वो शख्स के जो मेरा मुकद्दर ही नहीं था। साया जो हुआ ख़त्म तो ये राज खुला तब, साया जो हुआ ख़त्म तो ये राज खुला तब, सूरज तो मेरे कद के बराबर ही नहीं था। साया जो हुआ ख़त्म तो ये राज खुला तब, सूरज तो मेरे कद के बराबर ही नहीं था। सोचा था कि सहरा को भी सैराब करूँगा, सोचा था कि सहरा को भी सैराब करूँगा, मैं लौट के आया तो समंदर ही नहीं था। सोचा था कि सहरा को भी सैराब करूंगा, मैं लौट के आया तो समंदर ही नहीं था। उस घर में मोहब्बत के दिए कौन जलाता, उस घर में मोहब्बत के दिए कौन जलाता, दीवार तो बाकी थी जहां दर ही नहीं था। उस घर में मोहब्बत के दिए कौन जलाता, दीवार तो बाकी थी जहां दर ही नहीं था। मैं ख्वाहिश दिल अपनी भला कैसे छुपाता, मैं ख्वाहिश दिल अपनी भला कैसे छुपाता, उस वक्त तो दिल सीने के अंदर ही नहीं था। मैं ख्वाहिश दिल अपनी भला कैसे छुपाता, उस वक्त तो दिल सीने के अंदर ही नहीं था। सच बोलना चाहते थे मगर बोल ना पाए, सच बोलना चाहते थे मगर बोल ना पाए, उन सब में कोई मर्द कलंदर ही नहीं था। सच बोलना चाहते थे मगर बोल ना पाए, उन सब में कोई मर्द कलंदर ही नहीं था। उस शहर खामोशा में कोई घर ही नहीं था। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक़ तो आप सब मतलब जानते हैं, तो इतनी बड़ी शख्सियत है। उनकी शोरा आफाक नज़में हैं दो, बल्कि नज़म एक है, उसके दो हिस्से हैं, शिकवा और जवाब शिकवा। लेकिन एक वाक़या है और वो ये है कि हज़रत अल्लामा इकबाल ने ये नज़में 1912-1913 में लिखी थी, और इन नज़मों के बाद उनका पूरे मुल्क में, पूरे इंडिया में, हिंदुस्तान में ऐसा शोहरा हो गया था कि ये वाक़या उसी हवाले से है। आप देखिए कि उस वक्त हज़रत अल्लामा इकबाल की जो उम्र थी जब उन्होंने ये नज़में लिखी थी, उस वक्त उनकी उम्र 35-36 साल की उम्र थी, यानी 35-36 साल का एक जवान, उसकी फिक्र देखिए, उसकी फिक्र की अज़मत देखिए, उन्होंने ये नज़में लिखी। और वो वाक़या ऐसे है कि लाहौर के करीब एक गाँव है शर्कपुर, और मियाँ शेर मोहम्मद वहाँ के बुजुर्ग हैं, उनका मज़ार भी है वहाँ। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जब हयात थे, वो जिंदा थे उस बुजुर्ग, तो अल्लामा इकबाल को मिलने के लिए उनका बड़ा शोरा था।
ये शेर बेटा एक जब और उनका मतलब ये था कि वो अपनी महफिल में किसी ऐसे शख्स को नहीं बैठे देते जो कि ज़ाहिरी तौर पर भी हुजूर पाक की किसी शरा का वायलेटर हो, तो ये उनका एक नहीं बैठे देती थी। मतलब कोई क्लीन शेव है तो उसको नहीं बैठे देते, या ज़ाहिरन किसी और हुजूर पाक की सुन्नत का तारीख है तो वो नहीं बैठ सकता था वहाँ। तो अल्लामा इकबाल चले गए उनकी महफिल में। अब देखिए अल्लामा इकबाल की उस उम्र 35-36 साल की उम्र और उनका शोरा हो चुका था पूरे हिंदुस्तान में शिकवा जवाब शिकवा के हवाले से। तो अल्लामा इकबाल जाकर जब उनकी महफिल में बैठे तो मियाँ शेर उमर साहब ने कहा कि भाई तो यहाँ बैठे हो, तुम्हें मालूम नहीं कि क्लीन शेव जो है ना यहाँ नहीं बैठ सकता, चलो गेट आउट। गेट आउट तो नहीं कहा कि भाई आप चले जाए, आप छोड़ जाएं ये चले जाएं। तो अल्लामा इकबाल वहाँ से उठकर उस वक्त मोटरसाइकिल तो नहीं थी, टांगे पर आए थे, तो अल्लामा इकबाल उठे और चल पड़े वापसी के लिए। तो कोई शख्स वहाँ बैठा हुआ था जो अल्लामा इकबाल को जानता था। तो उसने कहा हजरत ये जिनको अभी आपने यहाँ से रवाना किया है कल है, आप जानते हैं कौन? कहते नहीं मैं तो नहीं जानता ये कौन। अच्छा। मैं कहा जी कि यही इकबाल है जिसने शिकवा जवाब शिकवा लिखा है। कहते ये वो इकबाल है। अच्छा। ओह मैंने क्या किया, उसी वक्त फौरन उठे जूता पहना और भाग पड़े अल्लामा इकबाल के पीछे। अच्छा, शेरों था वो अल्लामा इकबाल टांगे में बैठ रहे थे वापस जाने के लिए, तो वहां जाकर उनको पकड़ा और हाथ जोड़े, मैं माफी मांगता हूँ। तो जवाब शिकवा के मैं चंद बात आपकी खिदमत पेश करता हूँ जी। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास बगर रखती है। कुदसी और असल है रफत पे नजर रखती है, खाक से उठती है गर्दों पे गुजर रखती है। इश्क था फितना करो सबकशो चालाक मेरा, इश्क था फितना करो सबकशो चालाक मेरा। आसमां चीर गया नाला बेबाक मेरा। पीले गर्दों ने कहा सुन के कहीं है कोई, पीले गर्दों आसमान, पीले गर्दों ने कहा सुन के कहीं है कोई। बोले सैयारे सरे अर्शे भरी है कोई। चांद कहता था नहीं अहले ज़मीं है कोई। कहकशां कहती थी पोशीदा यही है कोई। कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिज़वा समझा, कुछ जो समझा मेरे शिकवा को तो रिज़वा समझा। मुझको जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। थी फरिश्तों को भी है कि ये आवाज है क्या, थी फरिश्तों को भी है कि ये आवाज है, थी फरिश्तों को भी हैरत कि ये आवाज है क्या। अर्श वालों पे भी खुलता नहीं ये राज है क्या। तासरे अर्श में इंसान की तगो ताज है क्या। आ गई खाक की चुटकी को भी परवाज है क्या। गाफिल आदाब से सकाने ज़मीं कैसे हैं, गाफिल आदाब से सकाने ज़मीं कैसे हैं। शोको गुस्ताख पस्ती के मकी कैसे हैं। इस कदर शौक कि अल्लाह से भी भरम है, इस कदर शौक कि अल्लाह से भी भरम है। था जो मस्जूद मलाइक ये वही आदम है। आलम कैफ है दानाए रमूज़े कम है। हाँ मगर इज्ज़त के इसरार से नामहरम है। नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को। बात करने का सलीका नहीं
हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाए किसे राह रोवे मंजिल ही नहीं।